Praise the Lord, church. Praise the Lord, कलीसिया। We greet you in the mighty name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत है I hope you all are doing good. और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हो। You know, today's word is very special. और आज का वचन बहुत ही स्पेशल है It relates to each and every one of us what we go through in our lives. और ये जो वचन हम आज सुनने वाले हैं वो हम सबके जीवन में हम जानते हैं कि हम उससे गुजरते हैं। Today we are going to talk about the hidden blessings in the storms of life. और आज हम छुपी हुई आशीषें जो आंधी तूफान में होते हैं हमारे जीवन में उसके बारे में बात करेंगे। We will read Matthew 14:22 to 33. और हम मत्ती के वचन में आएंगे, मत्ती का 14 अध्याय उसका 22 वचन। Immediately Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side, while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to pray. Now when evening came, he was alone there, but the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a ghost," and they cried out of fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer, it is I. Do not be afraid." And Peter answered him and said, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." So he said, "Come." And when Peter had come down of the boat, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, saying, "Lord, save me." And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, "O you of little faith, why did you doubt?" And when they got into the boat, the wind ceased. Then those who were in the boat came and worshipped him, saying, "Truly, you are the Son of God." और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाए जब तक कि वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच में लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वह नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। So now in this passage it's clear to us that these disciples were stuck in a storm. और इस अध्याय में, इस वचन में हम साफ तरीके से देखते हैं कि यीशु मसीह के जो शिष्य थे वो आंधी तूफान में फंस चुके थे। They were stuck in a storm because Jesus commanded them to cross the Sea of Galilee. वो इस तूफान में फंस चुके थे क्योंकि यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी थी कि इस नदी को पार करना है। Now these men were in the will of God. अब यीशु मसीह के शिष्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहे थे And they were very close to him. और वो परमेश्वर के, यीशु मसीह के काफी करीब थे। But still we see that they were struggling at this very moment. पर हम फिर भी यहाँ देखते हैं कि भले ही वो करीब थे फिर भी वो इस समय में संघर्ष कर रहे थे। While facing the storm, they were unable to move forward. और इस आंधी तूफान को सामना करते वक्त वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। That storm brought fear, that storm brought doubt in their minds. और ये तूफान उनके मन में एक शंका पैदा किया। Today I just want to ask you that have you, of course we all face storms in our life, but has any storm overcome you? और हम जानते हैं कि हम सब अपने जीवन में आंधी तूफान का सामना करते हैं, बट मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या किसी आंधी तूफान ने आपको हराया है?
We all have times like that when we doubt the way of God. और हमारे जीवन में काफी ऐसा समय आते हैं, ऐसे दिन आते हैं कि हम परमेश्वर के ऊपर एक शंका रहती है कि परमेश्वर करेगा या नहीं। You know, there are some storms that you know how to tackle because you have gone through it. और ऐसे कुछ तूफान हमारे जिंदगी में आते हैं जिनका सामना हम कभी कभार कर पाते हैं क्योंकि हमें उसका अनुभव है। And sometimes you don't know what to do. और कभी कभार हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें इसके आगे क्या करना है, कैसे इसको पार करना है। But when you know what to do and when you don't know what to do, both of the times we have to trust Jesus. अगर आप जानते भी हो कि तूफान को कैसे सामना करना है या ना भी जानते हो, पर दोनों ही बातों में हमें परमेश्वर के अधीन रहना है। I don't know today morning that what kind of storm you are going through. और मुझे नहीं पता कि आज सुबह आपके जीवन में कौन से आंधी तूफान से आप संघर्ष कर रहे हो। No matter how hard you try, you are still struggling and you're stuck in that place. और चाहे आप कितनी भी कोशिश करो, आप उसी जगह पर फंसे हुए हो। You can't see how the storm can be changed into something good. आप ये नहीं देख पा रहे हो कि कैसे इस तूफान को किसी अच्छी चीज में बदला जाए। But let me tell you that there is a good news for us in the Word of God. और मैं आपको कहना चाहूंगा विश्वास से कि परमेश्वर के वचन में हमारे लिए एक अच्छा सुसमाचार You है। know, when we face the storms of life, it changes us. It makes us more better and more stronger. आमीन। हमारे जीवन में कभी भी तूफान या संघर्ष हो, वो तूफान हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। Now let's read the book of Hebrews chapter 12 verse 11. हम इब्रू के अध्याय में आएंगे, 12 अध्याय, उसका 11वां वचन। No discipline seems pleasant at the time, but painful later on. However, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शौक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। You know, it's very sad to say this, but nowadays there are some Christians who have just like made a deal with Jesus. और ये बात कहते हुए बुरा लगता है कि कुछ क्रिस्ती लोग जो है इस दुनिया में परमेश्वर के साथ ऐसा नाता रखते हैं जैसे कि कोई व्यापार हो। That only if I get good money, good bank balance, I will worship God. कि अगर परमेश्वर मेरे खाते में अच्छे पैसे जमा करता है, मेरे लिए सब कुछ अच्छा करता है, तभी ही मैं परमेश्वर की स्तुति आराधना If I get good food to eat like chicken tandoori and all that, then only I will dance for God and worship Him. और ये भी कुछ लोग सोचते हैं कि चलो परमेश्वर ने मुझे अच्छा खाना दिया है, तभी मैं परमेश्वर की स्तुति आराधना Some people करूंगा। just live for food, कुछ लोग सिर्फ खाने के लिए जीते हैं, but we are meant to live our lives for God. पर हमारे जीवन में एक ऐसी बुलावट है कि हमें परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करते हुए जीना है। You know, a diamond is a very rare thing. You cannot find it easily. एक हीरा जो है ये बहुत अनोखा एक पत्थर है जो हर जगह नहीं मिलता। And it's buried 150 to 200 kilometers below the earth's surface. और हीरा जो एक पत्थर है वो जमीन के 150 या फिर 200 मीटर नीचे दबा हुआ होता है। And where diamond is found, it's of course it's dark. There's no light over there. और जहाँ पर हीरे की तलाश होती है या जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर पूरा अंधकार है, कोई उजाला नहीं। You have to really dig in to get a diamond out. और एक हीरे को निकालने के लिए आपको जमीन के बहुत भीतर जाना होता है। Now suppose you get a diamond. Okay, you get a diamond. हम समझते हैं कि हम सबको एक हीरा मिला है। Now you get that diamond and what you do with it? It's of no use. There's no shine in it. पर आपने एक हीरा खोज के तो निकाला, पर उसमें ना कोई चमक है, ना कोई उसको आकार है। So you give it to a gem cutter. तो आप उसे तराशने के लिए एक कारीगर के पास देते हो। So what the gem cutter does is he polishes and he gives it a good shape. और जो कारीगर है वो उसे तराशता है, साफ करता है, उसे चमकता हुआ बना देता है। Even a little problem while polishing and giving shape, it will lose the light expected shine to give. और थोड़ी सी भी गलती हम उस तराशने में या उसे साफ करने में, चमक दिलाने में गलती कर गए तो उसका जो एक पहचान है वो खो जाएगा। Most of us want to be in that dark place only. और हम में से कई लोगों को उस अंधकार में ही रहना है। God is digging and He is bringing us out, but we are getting so
habituated to that place that we will want to remain there only. परमेश्वर चाहता है कि वो आपको उस अंधकार से बाहर निकाले, वो एकदम गहराई में आने की कोशिश करता है, पर हम उसी जगह पर रहना चाहते You हैं। know, when God created you, He said that you're more valuable than a diamond. और जब परमेश्वर ने आपकी रचना की, आपको बनाया, उसने कहा कि तुम मेरे लिए एक हीरे से भी मूल्यवान हो। You know, there is nothing that can be compared to you ऐसी कोई चीज की तुलना आपके साथ नहीं की जा सकती, because you yourself are the image of God. क्योंकि हम सब परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। You know, I want to show you today that really there are hidden blessings in those storms. और मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि चाहे जीवन में आंधी तूफान क्यों ना हो, उसमें हमारे लिए हर बार एक आशीष का कारण होता है। You know, when you drive a car, और जब हम एक गाड़ी चलाते हैं, the car doesn't know where to go, which road is good, and how to stop, how to press the brakes. एक गाड़ी को नहीं पता कि उसको किस दिशा में जाना है, बाएं जाना है या दाएं जाना है, गाड़ी नहीं बता सकती। The one who is driving the car, who has the Amen. steering wheel in his hand, he knows when to take a turn, when to press the brakes, when to accelerate. और जो गाड़ी चलाता है, उस इंसान को पता है कि गाड़ी को किस दिशा में घुमाना है, कब उसे यू टर्न मारना है, किस दिशा पर लेके जाना है। जो इंसान चलाता है वो बता सकता है, गाड़ी नहीं। Now you do not know where to go, how to move forward. अब आप अपने आप को उस गाड़ी की जगह रखो, क्योंकि आप नहीं जानते आगे आपकी दिशा कहाँ है, आपको कहाँ बढ़ना है। And your steering wheel is in the king's hand. और आपका जो गाड़ी का स्टेयरिंग है, वो परमेश्वर राजा के हाथ में है, जो उसे चलाता है। Now if he wants to go right, he will turn to the right. और अगर परमेश्वर को दाएं तरफ जाना है तो गाड़ी दाएं तरफ घूमेगी। If he wants to stop for a moment, he will stop. और अगर आपको वो कहीं रुकाना चाहता है, वो वहां पर रुकेगा। God is in control of everything in that we can see. परमेश्वर का नियंत्रण हर एक चीज पे है जो हम आज इस दुनिया पर देखते हैं। I do not know that what kind of storm that you are facing in your life today. मैं नहीं जानता कि आप सबके जीवन में कौन सी आंधी तूफान से आप गुजर रहे हो, But I do believe that there is a purpose of God in that storm. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि उस आंधी तूफान में परमेश्वर ने आपके लिए जरूर एक कुछ तो मकसद है उसमें। You know, we see in this passage that when the disciples were stuck in the storm, और जैसे हम मत्ती के अध्याय में देखते हैं कि जैसे परमेश्वर यीशु मसीह के जो शिष्य थे, वो उस तूफान में फंसे हुए थे, and when Jesus came walking on the water, और जब यीशु मसीह पानी पर चलकर आए, you know, it says that Jesus came to them in the fourth watch, और ऐसा लिखा गया है darkest hour. कि परमेश्वर यीशु मसीह शिष्यों को सबसे अंधकार के समय में दिखा। That is between 3 a.m. to 6 a.m. as recorded in the word. जैसे वचन में लिखा है 3 a.m. to 6 a.m. 3 से 6 बजे के बीच में, You know, it's known as the darkest hour of the night. और उसे कहा जाता है कि वो सबसे अंधकार का समय है, रात का समय। Let me tell you one thing, that you may be in a place today that you cannot see anything happening. और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि शायद आप उस जगह पे होगे, उस अंधकार में होगे कि आपको कुछ दिख नहीं पाएगा, आप कुछ देख नहीं पाओगे आगे का। You don't know if God is really looking at you and answering your prayers. आप ये भी नहीं जानते शायद कि परमेश्वर आपकी तरफ देख रहा है या आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे रहा है। And the devil may be, you know, playing his mind games and saying that God is never going to answer you. और शैतान भी बड़ी चतुराई से आपको Mind games, भटकाने की बात कर रहे कोशिश करेगा कि परमेश्वर शायद तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दे या ना दे। हैं. But I believe that his word says he has plans to prosper us and not to harm us. पर मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि वचन ने कहा है कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में जो है वो भलाई के लिए है, He has a plan to give you a hope and a future. और ऐसी योजना जो आपको एक आशा और एक अच्छा भविष्य देगी। You may be walking in darkness today. और आज शायद आप अपने जीवन में कहीं पर एक अंधकार के समय पे चल रहे होंगे, You may be facing the darkest time, the days of your life. और आप इस स्थिति में होगे कि शायद आप बहुत ही मायूस हो उस जगह पे। Always remember that God has the final say. और हमेशा याद रखना कि जो परमेश्वर कहता है
वो ही सबसे आखिर की बात होती है, उसके आगे कोई कुछ नहीं कह He is सकता। still on the throne, remember that. और परमेश्वर अब भी अपने सिंहासन पर है, ये बात याद रखिए। Even in the darkest hours, that God is still in control of your life. और चाहे हमारे जीवन के सबसे अंधकार के समय में क्यों ना हम जी रहे हो, परमेश्वर का उस पर भी नियंत्रण है। You are scared right now. You may be scared because of the storm. शायद आप तूफान को देख के डर गए होंगे, The disciples were also scared. क्योंकि यीशु मसीह के शिष्य भी डरे हुए थे तूफान को And देखकर। when Jesus came walking on the waters, और जब यीशु मसीह पानी पर चलकर आए, they were so scared that they thought that they seen a ghost. और वो इतने डर गए कि उन्हें लगा कि उन्होंने किसी भूत को देखा। You know, God used the sea to come in front of the disciples. और परमेश्वर ने एक समुद्र को चुना ताकि वो अपने Appear. शिष्य के सामने प्रकट हो सके। God will appear to you in His own ways. परमेश्वर आपके सामने उनके तरीके से कैसे भी प्रकट हो सकता है। You know, He's there even when you can't see Him. और वो मौजूद है जब आप सोचो कि वो है नहीं। When the disciples were stuck in the boat in the storm, और जब यीशु मसीह के शिष्य उस नाव पर फंस गए थे, they lost all hope. उनकी आशा पूरी टूट चुकी And थी। when they lost hope and they thought that अपना time तो आ गया है, that is the moment Jesus came walking on the water. और जब उन्होंने सोचा कि शायद वो बच नहीं पाएंगे इस तूफान में, उसी समय यीशु मसीह वहां पर आगमन हुए। You know, there are always times in our life that we feel that we have lost the battle. और ऐसे कई बार हमारे जीवन में होता है कि हम सोचते हैं कि शायद हम ये युद्ध हार चुके। You know, but let me just tell you that the Lord is in charge of your blessings and He is in charge of your storms. और मैं आपसे विश्वास से कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके आशीषों को भी जानता है और आपके तूफानों को भी जानता है। So, you know, whatever happens with the purpose of God. और जो भी आपके जीवन में होता है वो एक परमेश्वर की योजना के द्वारा You होता है। know, whatever you're facing, remember that Jesus is greater than any other storm. चाहे आपके जीवन में कोई भी संकट क्यों ना हो, हमेशा याद रखिए कि यीशु मसीह सारे तूफानों से बढ़कर You know, है। you have to be patient, and if you are patient, He will show up. और आपको धीरज बांधना है, क्योंकि जब आप धीरज में रहोगे, परमेश्वर अपने तरीके से आपको सारी चीजें प्रकट करेगा। You know, we also see in this passage that storms are God's means of testing a person. और हम ये भी देखते हैं अध्याय में, परमेश्वर का तरीका होता है कि हमारी छोटी सी परीक्षा लेना। You know, when Jesus came walking on the water, और अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जब यीशु मसीह पानी पर चलकर आए, the disciples didn't recognize Him. और यीशु मसीह के शिष्य उन्हें पहचान नहीं पाए। Now imagine, they are there with Him the entire day, and even if He comes in the waves, they can't recognize Him. और आप ये सोचिए कि वो यीशु मसीह के साथ कितने समय से थे, और फिर भी जब वो समुद्र पर चल के आया, तब भी शिष्य उन्हें पहचान नहीं पाए। You know, this is the same that happens with us. और ये इसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है। We are spending time with God and in prayer, in reading the Word. और हम परमेश्वर के साथ अपना समय बिताते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। And when we face the storm of our life, और जब हमारे जीवन में आंधी तूफान आती है, fear starts building in us. और एक भय हमारे अंदर निर्माण होता है। And you know, when that fear, even though we see Jesus, we cannot recognize Him. और कई बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, पर हम उसे पहचान नहीं पाते। Because your mind is filled with fear and doubt. क्योंकि हमारे मन में शंका है। You know, He came to them with a word of peace. और परमेश्वर यीशु मसीह उनके पास एक शांति का वचन लेके You know, आए। when they were scared and they said that Jesus is like, it is a ghost, it's not Jesus. और जब शिष्य डर के मारे कहने लगे कि ये तो भूत है, Jesus said, take courage. यीशु मसीह ने कहा धाड़स बांधो। You know, that is a word of peace. वो एक शांति का वचन है। And He also spoke a word of power और वो यीशु मसीह ने एक सामर्थ का भी वचन कहा, when He said, it is I. जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूँ। And in the end, we see that He spoke a word of potential.
और अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक किसी क्षमता की बात की, when he said, "Do not be afraid." जब परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि डरो मत। You know, the storms in your life has a way of revealing the Savior to you. और जो तूफान और आंधी आपके जीवन में है वो एक इस प्रकार है कि वो आपको जो उद्धार करता है हमारे जीवन का उसको प्रकट करता है। You know why do we face storms? आप जानते हो कि हम हमारे जीवन में आंधी तूफान से क्यों गुजरते हैं? The storms bring us more closer to God. और हम आंधी तूफान अपने जीवन में अनुभव करते हैं क्योंकि वो हमें परमेश्वर के और करीब लाता है। Don't think in your mind that maybe I have done something wrong and maybe God is, punishing me. No. आप ये मत सोचिए अपने मन में कभी भी कि शायद मैंने कुछ गलती की है इसलिए मेरे जीवन में आंधी तूफान है, ऐसा नहीं है। If you have been reconciled with God and living your life right, don't be in that misunderstanding that you have sinned in your past. That's why you're facing the storms. और आप ये मत सोचिए कि शायद आपके जीवन में आपने कुछ पाप किए हैं। अगर आपका परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के साथ नाता अच्छा है, if that was true, then God would have just left you. He wouldn't have sent his son to die in your place. और अगर ये बात सही होती तो परमेश्वर ने आपको जीवित नहीं रखा होता। We see that they were still in the storm when Jesus said, "Take courage." और हम जैसे देखते हैं कि वो फिर जो शिष्य थे वो अभी भी तूफान में थे जब परमेश्वर ने कहा उनको कि धाड़स बांधो। We go through problems and someone comes to us and say, "Arey, take courage, don't worry." और जब हमारे जीवन में आंधी तूफान होती है तो जब कोई आकर हमें कहता है कि तुम परेशान मत हो, धाड़स बांधो। In our mind we think that, "Baba, you come in my shoes and you will come to know what I'm और हम going मन में ये सोचते हैं कि आप हमारी जगह पे आइए फिर आपको अनुभव होगा कि हम किस स्थिति में है या किस चीजों से गुजर रहे हैं। But here it's God who is saying, "Take courage." पर यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है कि धाड़स बांधो। The one through whom strength is provided for his children. जिसके द्वारा हमें सामर्थ्य मिलता है उस आंधी तूफान के साथ आगे बढ़ने का। Another human being cannot give you that strength and that emotional support. कोई इंसान आपको सामर्थ्य नहीं दे पाएगा जितना परमेश्वर देता है। He is God and he is there for you. वो परमेश्वर है, वो आपके साथ है, आपके लिए है। I'll just share one small story with you. और एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा। There was one evangelist, प्रभु का सेवक, और मैं एक कहानी बताना चाहूंगा जो एक प्रभु के सेवक के बारे में है। His wife accidentally dies. और किसी दुर्घटना में उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। And they have 2 boys. और उनके 2 बेटे हैं। So now the evangelist, he has to go for crusades and for meetings. और जो प्रभु का सेवक था उसे कई सारे सभाओं में जाना पड़ता था। He has to travel all over the world. और पूरी दुनिया भर में उनको सैर करना पड़ता था या घूमना पड़ता था। And whenever he used to return home, he used to bring some small gift for the boys. और जब भी वो घर पर आते थे वो हमेशा अपने बेटों के लिए कुछ ना कुछ तोहफा लेके आते थे। And one time the evangelist just forgot to bring a gift for the boys. और एक बार वो प्रभु का सेवक अपने बेटों के लिए तोहफा लाना भूल गया। So the boys asked, "Dad, where's my gift?" और उनके बेटों ने पिता से कहा कि हमारी भेंट कहाँ है आज? So you know what the father says, that come on, let's go to the mall and let's buy some things from there. तो प्रभु के सेवक ने कहा कोई बात नहीं, हम एक मॉल में जाएंगे और वहां पे आपके लिए चीजें खरीदेंगे। So they all 3 go, the father and the 2 boys. और प्रभु का सेवक और उनके 2 बेटे दोनों मॉल में जाते हैं। And as they enter the mall, और जैसे ही वो मॉल में प्रवेश करते हैं, the small boys, they see a big shelf of candy, और chocolate. जो उनके 2 बेटे थे, जैसे ही वो मॉल में प्रवेश करते हैं उन्होंने एक बड़ा सा दुकान देखा जिसमें चॉकलेट्स मिलते थे। The boy said, "We want that chocolate." और उन्होंने कहा कि हमें यही चॉकलेट चाहिए। And they were insisting that we want the chocolate, we want the candy. और वो जिद करते रहे कि मुझे यही चॉकलेट चाहिए। But the father said, "Okay, we'll buy this, but let's go forward and see what else we can search." तो प्रभु के सेवक ने उनके बेटों से कहा ठीक है हम ये खरीद लेंगे पर एक बार आगे जाकर देखते हैं और क्या है। So they move forward and the boys see a big shelf
of toys. और जैसे वो आगे बढ़े उन्होंने एक बड़ी दुकान देखी जिसमें बहुत सारे खिलौने थे। And when small children see toys, they go haywire. और जब छोटे बच्चे किसी खिलौने की दुकान पर जाते हैं तो वो जरूर वहां से एक या दो उठाकर लेकर ही आते हैं। So they said that, Dad, I want that toy. और उनके बेटों ने फिर कहा कि मुझे यहाँ से तो अभी खिलौने चाहिए ही चाहिए। So the father said, okay, ठीक है, candy, then now toys. Let's move more forward and see what else we फिर can पिता see. ने अपने बेटों से कहा कोई बात नहीं, चॉकलेट लेना है, हमें खिलौने लेने हैं, कोई बात नहीं, जरूर लेंगे, चलो आगे देखते हैं और क्या है। So as they move forward, there was a wall in which they have this license, of a mall. Yeah, every mall has a license of selling products. और जो जैसे वो आगे बढ़ते हैं उन्होंने एक दीवार पर एक चीज देखी जिसे हम लाइसेंस कहते हैं, यानी कोई भी दुकान को या मॉल को चलाने के लिए It is zaruri. हाँ जरूरी होता है। It is named after the mall or the owner's name is there in the license. सर्टिफिकेट था उसमें मॉल का मॉल का नाम और और जो owner मॉल का को हाँ जिसका वो मॉल था उसका नाम था। तो the father calls a person and asks him to remove the license from the wall. और जो प्रभु का सेवक था उसने किसी को बुलाकर कहा कि ये जो लाइसेंस का फ्रेम है ये निकाल के दो। So that license, the copy, the original copy, he gave it to the boys. और जो उसका ओरिजिनल कॉपी था वो लाइसेंस का प्रभु के सेवक ने अपने बेटे को दिया। The boys didn't understand. We came for candy, we came for chocolate, toys. What is this paper that dad is giving us? और दोनों बेटों को नहीं समझ में आया कि हम तो चॉकलेट लेने आए थे, हम खिलौने लेने आए थे, पर ये क्या है हमारे हाथ में। Father explained that when we entered the showroom, the mall, you seen candy, toys. और पिता ने उनके बेटों को समझाया और बताया कि जब हम मॉल में प्रवेश किया तब आपने देखा कि चॉकलेट का दुकान है, खिलौनों का दुकान है। The father said, I took it to another level. उसे एक कदम और आगे ले लिया। He says that you wanted toys, candy, but I purchased the entire mall for you. और पिता ने अपने बेटों से कहा कि तुम्हें तो चॉकलेट या फिर खिलौना चाहिए था, पर मैंने तुम्हारे लिए पूरी मॉल खरीद ली है। So everything in it belongs to you. तो इसमें जो भी चीजें हैं वो सब तुम्हारी है। The boys didn't know how to answer, what to say. दोनों बेटों को ये समझ में नहीं आया कि किस तरीके से अपने पिता को उत्तर दे। Let me tell you one thing, brothers and sisters. और मेरे भाई और बहनों, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, Don't settle for candies. आपका मन सिर्फ एक छोटे से चॉकलेट की ओर मत रखना। Don't settle for the little things in this life. छोटी चीजों के लिए मत ठानना। Your God is a big God. आपका परमेश्वर एक महान परमेश्वर है He's a powerful God. जो सामर्थ्य से भरकर है। Just as the father purchased the entire mall and gave the sons, जैसे कि पिता ने अपने बेटों के लिए वो पूरा मॉल खरीद लिया, heaven backs you up. और स्वर्ग आपके साथ है। No matter what you are, no matter who you are, God still loves you. आप चाहे कैसे भी व्यक्ति हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। In verse 28 and 29 we see that they refine the same. They make the believer more strong. एक विश्वासी को परमेश्वर और मजबूत बनाता है। When Peter heard that it was the Lord, Peter wanted to join Jesus in walking on the जब water. पतरस ने सुना कि ये तो यीशु मसीह है, तो उसकी इच्छा हुई कि वो यीशु मसीह के साथ पानी पर चले। Jesus told Peter to come. और यीशु मसीह ने पतरस से कहा भी कि आओ। So he obeyed his voice and he got out of the boat and started walking. तो पतरस ने अपना पैर डाला नाव के बाहर और वो चलने लगा पानी पर। When you obey God, when he says something, और जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो, जब वो कुछ कहता है, you will do the impossible by the power of God. और जो चीज दुनिया के रीति में नामुमकिन है वो आप कर सकते हो। Out of the 12 disciples, only Peter is the one who could say that I could walk on water. और 12 शिष्यों में से सिर्फ पतरस ने उठकर कहा कि मैं चल सकता हूँ पानी। They were 12, but out of the 12, only one stood up and got out of the boat. 12 शिष्य थे, पर उनमें से एक ही उठकर नाव से बाहर निकल पड़ा। It takes real courage to do the impossible when God tells you.
और किसी नामुमकिन चीज को कर कर दिखाने के लिए बहुत धाड़स लगता है। That's why the first thing that God said, Jesus said on the waves is take courage. इसलिए पहली चीज यीशु मसीह ने समुद्र पर चलते वक्त शिष्यों से कहा था कि धाड़स रखो। God can use the difficult times to teach us about Himself. और परमेश्वर एक ऐसा समय चुन सकता है, चाहे हम वो उस मुसीबत में क्यों ना हो या वो तकलीफ में क्यों ना गुजरे, You know, हमें कुछ सिखाने के लिए। when Jesus calmed the storm और जब यीशु मसीह ने तूफान को रोका and He came into the boat with the disciples, और जब वो नाव में आया शिष्यों के साथ, the disciples knew at that very moment that they were in the presence of God. उसी समय शिष्यों को समझ गया था कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। You wait for a long time for the storm to get over, and finally, when Jesus calms the storm, you know that you are at peace. और आप बहुत समय रुकते हो उस तूफान आंधी तूफान से बाहर निकलने के लिए, पर जब यीशु मसीह उस तूफान को शांत करता है, You know that you are at peace. और हम जानते हैं तब कि हम एक शांति में हैं। When He came in the boat, they confessed to Him and they worshipped Him, bowing down to Him. उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की। I'll just give a little secret to you. और एक सीक्रेट बात आपसे बताना चाहूंगी। Don't wait for the storm to get over so that you can bow down and worship God. आंधी तूफान का थमने का इंतजार मत करो ताकि उसके बाद आप परमेश्वर की स्तुति आराधना कर पाए। Right where you are right now, bow down and trust in Jesus. चाहे आप उस आंधी तूफान के बीचों बीच क्यों ना हो, वहां पर ही आपको रुककर परमेश्वर के आगे स्तुति आराधना करना है। We can see another example of Job. और दूसरा हम उदाहरण देख सकते हैं अय्यूब। He was a very wealthy man and he lost everything. बहुत धनवान पुरुष था, पर उसने सब कुछ खो दिया। Everything, I mean, even his children. सब कुछ, यानी मैं उसमें उनके बच्चों की भी बात करता हूँ। But still he didn't open up his mouth and curse God. पर फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी अय्यूब ने परमेश्वर को नकारा नहीं। Still we see that his wife said that deny God and curse God and die. अय्यूब की पत्नी ने भी कहा कि तुम परमेश्वर को नकारो और मर जाओ। But he said God gives and God takes away. और अय्यूब ने कहा कि परमेश्वर ने जो दिया वो परमेश्वर लेता। Just as I shared the example of a steering wheel, if God wants to take it to the right, He will take it to the right. जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था एक गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, अगर परमेश्वर को दाएं तरफ मुड़ना है तो वो वहां पर ही मुड़ाएगा। No matter what you are, wherever you are today, remember that you are the diamond and that God is digging up and removing you out of that dark place. और आप जहाँ कहीं पे भी हो, आप जिस परिस्थिति में भी हो, याद रखना कि परमेश्वर के लिए आप वो हीरा हो जो वो बड़ी गहराई में से जाकर उसको तराशता है। Always trust in His plans. और हमेशा परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखो। I know that sometimes it is hard to in the storms that how something good will come out of it. और मैं ये भी जानता हूँ कि शारीरिक रूप में कई बार बहुत मुश्किल होता है कि आंधी तूफान में धाड़स रखना और मजबूत रहना। It is these storms that bring productivity. और यही वो आंधी तूफान है जिससे हमें उत्पादन मिलता है। In crisis there is productivity. और अकाल के समय में उत्पादन होता है। I don't know what kind of storm you are facing today. मैं ये नहीं जानता कि आप सबके जीवन में कौन सी आंधी तूफान है। But don't wait for the storm to get over so that you can worship God. पर तूफान या आंधी का जाने का इंतजार मत करो ताकि उसके बाद आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करो। I faced a storm in my life. और मैंने भी अपने जीवन में एक आंधी तूफान का सामना किया है। That was a storm that in which I used to play and surrender my time to Satan. ऐसा मेरे जीवन का समय था कि मेरा जिंदगी का आधा समय शैतान को जाता था। There was a time I lived a life of an atheist. ऐसे मेरे जीवन मैंने अपना बिताया है कि मैं कोई भी परमेश्वर या भगवान में विश्वास नहीं करता था। I devoted my time to I was always interested in music and I devoted my time to play
antichrist music that was against God. मुझे संगीत में मुझे संगीत बजाना बहुत अच्छा लगता था, पर मैं वो शैतान के लिए बजाता था। You know, whenever I used to play music, they used to call me demonic names. और जब भी मैं ड्रम्स बजाता था कोई भी बैंड में, वो मुझे शैतान के ही नाम से जानते थे। And they never used to call me by my real name. मेरे असली नाम से तो कभी मुझे बुलाते ही नहीं थे। You know, I had, that urge to go against Christians. और मेरे में पता नहीं उस समय ऐसा मेरा मन था कि मैं किसी लोगों के विरोध में जाता था। You know, Bible was handed over to me by a lot of leaders. बहुत सारे प्रभु के सेवक ने मुझे बाइबल मेरे हाथ में दिया। I just brought it home and kept it on the top shelf. और जैसे उन्होंने दिया, मैंने घर पर लाकर उसको कहीं कोने में रख दिया। I was in a very dark place. और मैं भी अपने जीवन में एकदम अंधकार के समय में था। But God can do the impossible. और जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन करता है। I used to hate Christians. I openly say that today. मैं ख्रिस्ती लोगों से बहुत नफरत करता था। But today I love them with the bottom of my heart. पर आज मैं उनसे अपने हृदय के गहराई से प्रेम करता हूँ। I consider each and every one of them as my own brothers and sisters. आप सबको मैं अपने भाई बहन जैसा मानता हूँ। God, the way He changes a person's heart, it's only He who can do this. और सिर्फ परमेश्वर एक इंसान का हृदय को परिवर्तन कर सकता है और कोई नहीं। I used to hate the Bible, but I love reading His word now. मैं बाइबल को किसी कोने में रखता था, पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, पर अब मुझे बाइबल पढ़ना बहुत पसंद है। You know why I'm speaking to you about my life? आप ये जानते हो कि मैं अपने जीवन के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ? When Pastor Edwin told me that it was my turn to preach the word this Sunday. जब मुझे पास्टर एडविन ने मुझे बताया कि इस हफ्ते का वचन मुझे बांटना है। I was just wondering, like, Holy Spirit, what do you want me to speak? और मैं बस इस बात पर गौर कर रहा था पवित्र आत्मा की उपस्थिति में कि पवित्र आत्मा आप क्या चाहते हो कि मैं क्या वचन बांटूं। And I just felt in my spirit that the Spirit saying that there is a time that is going to come that many are going to fall. और पवित्र आत्मा की अगुवाई से मुझे इस चीज का आगमन हुआ कि परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि ऐसा समय आने वाला है कि बहुत सारे लोग अपने विश्वास में गिरेंगे। That's why I wanted to share my testimony with you and build your faith. इसलिए मैं अपना वचन और अपनी गवाही आपके साथ बांट रहा हूँ ताकि आप उससे मजबूत हो। Always remember that Jesus is always with you. और हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर आपके साथ है। यीशु मसीह हमेशा आपके साथ है। If you are going through a storm, don't waste your time in drinking, in doing all the bad things. और अगर आप किसी आंधी तूफान से गुजर रहे हो, अपना समय व्यर्थ बातों में या व्यर्थ चीजों में न गवाए। I can tell you with experience that will not help you. और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आपके जीवन में आपकी कोई मदद नहीं करेगी। It will only ruin your inside inner being. और वो आपको अंदर से खोखला बना देगी। Always, even though it is hard, I urge you, just trust in God. मैं ये जानता हूँ कि ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। परमेश्वर पे विश्वास रखो। He is still on the throne and He has the final say. परमेश्वर अभी भी अपने सिंहासन पर है और परमेश्वर का जो वचन है वो आखिर का वचन होता है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father God, we thank you for this moment. पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इस समय के लिए। We thank you, Lord, that everyone who has connected to this word, और जो भी लोग प्रभु जी इस वचन से जुड़े हुए हैं, I pray that they may understand and they may trust in you, Jesus. और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि वो समझे और आप पर विश्वास करें प्रभु। Thank you for the beautiful plans that you have for us, Lord. धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे जीवन में एकदम सुंदर योजना बनाई है प्रभु। Thank you, Lord, for the plans to prosper us and not to harm us, Lord. धन्यवाद प्रभु उस योजना के लिए जो आपने हमारे भले के लिए बनाई है प्रभु जी। Help us, Lord, that we may dive deep into your word. और धन्यवाद प्रभु, हम मांगते हैं प्रभु कि आपके वचन में हम गहराई में जाए प्रभु।
Thank you, Lord, that you created us in your image. धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया। Thank you, Lord, that you have given us a good friend, a counselor, the Holy Spirit. धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें एक अच्छा दोस्त दिया है प्रभु जी, वो है पवित्र आत्मा। Thank you, Lord. We just want to surrender our lives into your hands, हम Father. अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। Lord, our steering wheel is in your hands. और हमारी स्टीयरिंग व्हील जो गाड़ी की है वो आपके हाथों में है। Lord, take us in the direction that you want us to go, Lord. और हमें उस दिशा में लेके जाइए प्रभु जहां आप हमें चलाना चाहते हो। Father, as a diamond that has to be dug out, Lord, it has to be polished. Lord, I pray that you polish us and give us the shape, Father. और जैसे एक हीरे को गहराई से निकाला जाता है, उसे चमकाया जाता है, तराशा जाता है, वैसे ही आप हमें चमकाइए प्रभु जी और हमें आकार दे प्रभु। If you are new and seeing this video, अगर आप नए हो और आप ये वचन देख रहे हो, I just want to urge you that no matter what problems you are going through, God has the final say. और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चाहे आप कोई भी तूफान में हो या आपके जीवन में कोई भी संघर्ष हो, हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर का जो वचन आपके जीवन के लिए है वो आखिर का वचन है। No matter what you are, or who you are, what you've done, Jesus still loves you. और चाहे आपने अपने जीवन में कई चीजें की क्यों ना हो, चाहे वो सही हो या गलत, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। He has a purpose for you. आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने एक योजना तैयार की है। Trust in Him. परमेश्वर पर विश्वास रखो। Any sickness in the bodies, Lord, we rebuke it in your name. और चाहे कोई भी शरीर में प्रभु जी बीमारी हो प्रभु जी, वो हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उसको खंडित करते हैं We प्रभु। speak and deploy your divine healing power to enter the bodies right now. और प्रभु जी आपकी चंगाई की प्रभु जी, चंगाई का सामर्थ उन शरीरों में प्रभु जी जाने पाए प्रभु, और वो शरीर चंगा होने पाए We प्रभु। believe in your power, Lord Jesus. और आपके सामर्थ में हम विश्वास रखते We हैं प्रभु। believe that the name of Jesus is greater than any और other हम storm. विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का नाम सारे नामों से ऊंचा है, सारे आंधियों से बढ़कर है। Everything has to bow down at the name of Jesus Christ. हर एक चीज को यीशु मसीह के नाम के आगे झुकना है। In the name of Jesus Christ we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। I hope you guys understood every word that we said. और मैं ये आशा करता हूँ कि ये जो वचन आज हमने बांटा है उससे आप प्रोत्साहित हुए हो। You know, when God created you, He created a champion. और परमेश्वर ने जब आपको बनाया है, एक चैंपियन बनाया है। You know, so live like a champion. तो एक चैंपियन की तरह अपनी जिंदगी बिताए Fly like an eagle. और एक बांझ की तरह आप उड़े। हवा में उड़े Don't spend time with the crows. और कौवों के साथ अपना जीवन ना You बिताए, won't get anything there. वहां कुछ नहीं मिलेगा आपको। Want fresh air? Go to the heights as the eagle goes. अगर आपको एक अच्छी हवा चाहिए, आपको ऊंचाई पर उड़ना है। I hope you have a blessed week और आपका यह हफ्ता आशीषित हो। and shalom शालोम। until we meet next. हम फिर से मिलेंगे। आमीन।